Good morning, class. Welcome once again on this IMC, that is Industrial Management Costing. We are discussing the first unit, that is Principles of Management. And we have seen so many concepts up till now. We have seen what do you mean by management, what are the different definitions of management given by various persons like Mary Parker Follett, like F.W.Taylor, like Henry Fayol, and so on. Then we have seen what are the different functions of management like planning, organizing, staffing, coordination, motivating, etc. Then we have seen what are the different kinds of organizations. The different kinds of organizations are line organization, military, scalar chain, then functional organization, matrix organization, and so on. Then we have seen what are the different characteristics of management. Then we have seen what do you mean by leadership, what do you mean by centralization, what do you mean by delegation of authority, and so on. And then we moved on for what is the differences between the administration and the management, administration and the management, and so on, and the difference between the administration and the organization. And now we have seen what the Maslow's theory, need hierarchical theory, wherein they have classified the needs according to the needs of the human beings. The needs are being classified as per the levels of the human being as 1, 2, 3, 4 and 5. Then उसके बाद हम लोग देख रहे थे, we were seeing the 14 different principles given by Henry Fayol. And now, after that 14 principles of Henry Fayol, there is one person named as F.W. Taylor, Frederick W. Taylor. He was a mechanical engineer. He was working on the shop floor. तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ टेक्निक्स दिए थे मैनेजमेंट की, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. So that is what we are going to see today. What do you mean by scientific management? So basically scientific मतलब क्या होता है? Scientific मतलब कुछ तो भी एक ऐसा पार्ट जिसके लिए आप प्रूफ दे सकते हो. बेसिकली साइंस क्या कहता है कि अगर एक चीज़ आप करते हो और आपको उसका एक रिजल्ट मिलता है, तो वही चीज़ आप दोबारा करते हो तो आपको तब भी उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है. अगर आप पैरामीटर चेंज करते हो तो रिजल्ट भी प्रोपोर्शनेटली वेरी होता है. सो समथिंग दैट इज बीइंग प्रूव्ड, दैट कैन बी प्रूव्ड ऑल टाइम एंड इन ऑल द कंडीशंस with the variation that too which can be a logical thing. यानी ऐसा नहीं है कि आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और कल आप परफॉर्म ही नहीं कर. नॉट लाइक दैट. साइंस इज समथिंग वेरी फैक्चुअल. इट ऑलवेज गिव्स यू द रिजल्ट. इट इज द पार्ट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है कि जिससे आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. और इसमें कुछ ना कुछ बियॉन्ड छोटी, इसमें जस्ट इसी फिलोसफी नहीं है. नॉट ओनली फिलोसफी, देयर इज अ काइंड ऑफ साइंस बिहाइंड इट. हेंस दिस आर कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट concepts. So now here you see the concept of scientific management was introduced by Frederick Winslow Taylor. He defined it as scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then see that they do in the best and the cheapest way. मतलब what does he say कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको लोगों को करना क्या है. एग्जैक्ट मतलब पूरी प्रोसेस एक ब्रेकडाउन, हर छोटी छोटी चीज़ को ब्रेक डाउन करके आपको पता होना चाहिए कि व्हाट द पीपल हैव टू डू, व्हाट द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज इंडस्ट्री हैड टू डू, एंड देन सीइंग टू इट दैट इट इज बीन डन, और फिर ये देखना कि वो हुआ है. दैट इज व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट वॉज कंसर्न विथ इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट द शॉप फ्लोर लेवल. मतलब शॉप फ्लोर मतलब बेसिकली वो पार्ट होता है जैसे हमने वर्कशॉप में देखा ना, यहाँ पर आप लोगों ने वर्कशॉप में प्रैक्टिस परफॉर्म होगी तो वहाँ पर लेथ मशीन रखी हुई है, वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है, प्लेनर मशीन है, और आपने उस पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी किए होंगे. नाउ ही सेज दैट कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करना. अब मैं आपको बताऊँ तो इंडस्ट्री में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का पार्ट होता है वो सब शॉप फ्लोर पर होता है. डिज़ाइंस ऑफिस में होते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग अलग जगह होता है, लेकिन बेसिकली जो बेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करोगे तभी आप उसको सेल कर पाओगे, तभी आप मार्केट में ला पाओगे. और आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ बनाते हो, तभी ये पूरी इंडस्ट्री चलती है. तो शॉप फ्लोर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और ऐसे भी देखो, शॉप फ्लोर का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने में तो समझ लेना बेसिकली आप पूरी तरह इंजीनियर बने ही नहीं हो. क्योंकि क्या होता है, डिज़ाइंस की जो जॉब है दे आर सोफिस्टिकेटेड वंस. यू आर सिटिंग इन एसी केबिन्स, आप सिस्टम्स पे वर्क करते हो, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, आप मॉडल करते हो, टूल बनाते हो, सारी चीज़ें, और फिर उसको आगे प्रोडक्शन होता है. लेकिन जब तक आप शॉप फ्लोर पर नहीं जाते हो, एक्चुअली आपको समझ में नहीं आती कि एक एक मशीन्स क्या है, उसका वर्किंग कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है. आपको पता नहीं है कि ये क्या है, वो मशीन कौन सी लगी, कौन सी प्रोसेस कैसे होती है, ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, ट्रिमिंग मतलब क्या होता है, फॉर्जिंग मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्जिंग मतलब क्या होता है. देयर आर 84 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. 84. तो जब तक आपको पता नहीं होता तब तक आप पूरे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाते. वैसे भी बोला है कि जब तक अब तुम्हारे हाथ काले नहीं होते ना, जब तक इंडस्ट्री में तुम्हारे हाथ काले नहीं करते तब तक तुम मैकेनिकल इंजीनियर होते ही नहीं. हाँ, इट इज़ अ डिफरेंट पार्ट की सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हर तरह का जॉब होता है, बट
दिस इज स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट यू मस्ट वर्क ऑन द शॉप फ्लोर. शॉप फ्लोर पे आपने काम करना ही चाहिए एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, एज एन असिस्टेंट मैनेजर, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, बट यू मस्ट नो द एबीसी ऑफ द शॉप फ्लोर. सो दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्होंने क्या बताया कि अगर वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ी तो वो एफिशिएंसी सब तरफ अप्लाई होती. मतलब अगर आप शॉप फ्लोर को बेटर बना सके तो आपकी इंडस्ट्री वैसे ही बेटर बनती है. सो दैट इज व्हाट ही हैड सेड. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू. मगर आपको एक ऑपरेशन करना है, चलो ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपको एक पर्टिकुलर जॉब है, उसमें आपको ट्रेडिंग करना है, टर्निंग करना है, नर्लिंग करना है, फिनिशिंग करना है और काफ़ी सारे प्रोसेस करने हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस पहले करोगे, कौन सा प्रोसेस बाद में करोगे, असेंबली कब करोगे, कौन सा टूल, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ये सब कुछ पता करना. दैट मीन्स एग्जैक्टली आपको क्या करना है आपके लोगों ने ये, और वो देखना कि फिर वो प्रॉपरली हो रहा. दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. और अगर ऐसे होता है तो इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है. और अगर शॉप फ्लोर की एफिशिएंसी बढ़ती, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती है. प्रोडक्टिविटी बढ़ती मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है. एंड एवरीथिंग इट इज ऑल रिलेटेड विथ शॉप फ्लोर. क्योंकि आपने प्लानिंग तो दुनिया भरी की कर ली, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पर होगा वो सब कुछ, वो एग्जीक्यूट होगा शॉप फ्लोर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इट वॉज कंसर्न विद द इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट शॉप फ्लोर. This particular person, F.W.Taylor, he was born on 20th March 1856 and he died in 21st March 1915. Widely known as F.W.Taylor, he was an American mechanical engineer. मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दुनिया में बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए हैं. यू विल नो इट लेटर. और जैसे आपको भी पता चलेगा, आप भी बताना, मुझे भी अगर आगे जब ख्याल आएंगे एग्जाम्पल्स इससे रिलेट, तो आई डेफिनेटली टेल यू. मैकेनिकल इंजीनियर सॉट टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही वॉज द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ये सारे मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट स्टार्ट किए थे. हेंस ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, F.W. Taylor, एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट कि मैकेनिकल इंजीनियर जब वो शॉप फ्लोर पे था तो उन्होंने देखा था ये सारी चीज़ें, एंड देन ही डिस्कवर्ड सो मैनी थिंग्स एंड टेक्निक्स. अब बेसिकली होता कैसे, चलो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमको समझ में आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि आपको शॉप फ्लोर की एफिशिएंसी इंप्रूव करना है. लेकिन आप वो किस तरह से करेंगे, व्हाट यू विल डू इट. तो देखो यहाँ पर वो बताते हैं एलिमेंट्स. उसके जो एलिमेंट्स है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग. मतलब सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, यानी अब जो शॉप फ्लोर पे वर्क हो रहा है उसका प्लान कोई और करेगा, एक्चुअल वर्क कोई और करेगा. फंक्शनल फोरमैनशिप, job analysis, standardization, scientific selection and training of workers, financial incentives, economy and mental revolution. Okay, we'll see them one by one. यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं. We'll see it one by one. What do you mean by separation of planning and doing? अब क्या होता था जनरली कि वर्कर्स को एक टास्क दिया जाता था कि दिस इज द जॉब यू हैव टू कंप्लीट. जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो शॉप फ्लोर मतलब जो आपका वर्किंग प्रोडक्शन के एरिया है, वहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, उन पे ख्याल करने के लिए सुपरवाइजर्स रहते हैं. वर्कर्स के पहले फोरमैन रहते, फिर सुपरवाइजर्स रहते और उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स, एंड ये ऐसी पूरी की पूरी चेन रहती. तो अब जब वो वर्कर को टास्क दिया गया कि ये प्रोडक्शन है, आज सबको कंप्लीट करना है, और फिर जितने सपोज आप 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो 50 में वो जॉब डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो वर्कर कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा, वो कैसे करेगा, वो उस पर डिपेंड करता था. लेकिन व्हाट डज ही सेज F.W. टेलर कि आप ऐसा मत करो. सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, ये सब मिल के बैठो और आपके एक्सपीरियंस से आपको प्रोसेसेस पता है, क्योंकि वर्कर को तो सिर्फ उसका काम पता है लेकिन आपको आगे की सारी चीज़ें पता है. तो आप सब लोग मिल के बैठ के डिसाइड करो कि उसने कौन सी प्रोसेस पहले करनी चाहिए, कौन सा जॉब पहले लगाना चाहिए, किस ऑपरेशन को कब करना चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ करना चाहिए, टूल्स कौन से यूज़ करना चाहिए. और ये करने के बाद में फिर वर्कर को आने के बाद में उसको प्लानिंग का काम ना रहा, उसको पूरा चार्ट तैयार रहे कि ओके 1 to 2 you have to work on this machine and you have to get this much operation done. Next you have to do this operation, after that you have to do next operation. तो ये पूरा चार्ट रेडी रहेगा. तो what will happen, the worker will come, he will see the chart and he will start working on it. That means वो जो वर्कर खुद प्लान करता था वो बोलना है कि उसको प्लान मत करने दो, बिकॉज उसमें उसका टाइम कंज्यूम होगा. बेटर वे आप उसको एक परफेक्ट प्लान बना के दो कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड वन मोर थिंग कि अगर वर्कर काफ़ी वक्त से वर्क कर रहा है एंड ही हैज़ अ वेरी गुड प्रोसेस एंड ऑप्टिमम प्रोसेस कि जिससे काम जल्दी होता है, तो आप उसको भी कंसिडर करो. और ये सब मिलके जो फिर प्लानिंग करेंगे उसके ऊपर वर्क करेगा. तो इन्होंने क्या बोला, सिंपली प्लानिंग एक अलग पार्ट हो गया और वर्किंग एक अलग पार्ट हो गया. सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग. व्हाट इज दिस, टेलर एम्फेसाइज्ड the separation of planning aspect from actual doing of work. Earlier a worker used to plan about how he had to work and what instruments are necessary for that.
A supervisor's job was merely to see the workers are performing, how the workers are performing. Taylor suggested that planning should be left to the supervisor and the worker should only emphasize on the operational work. कि बस वर्कर का सिर्फ इतना काम रहेगा कि वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करे और ये जो प्लानिंग का काम है ये सुपरवाइजर से मैनेजर्स लोग ये लोग करके देंगे. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये इससे देखो इससे ऐसा होगा पॉसिबल, इससे ये होगा कि जो वर्कर है उसको जो एडिशनल वर्क करना पड़ता था वो पार्ट उसका निकल जाएगा प्लानिंग का, और सुपरवाइजर जो सिर्फ उसका काम था कि उस पर ख्याल रखना, इस पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी. और जब आप वर्कर को एक्चुअल जो उसका प्रोग्राम है वो बना के दोगे, पूरा उसको चार्ट तैयार करके दोगे, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ब्रेन्स एंड वेरियस टैलेंट्स पुट टुगेदर. अ सुपरवाइजर, अ मैनेजर, अ प्लानिंग मैनेजर, अ फैक्ट्री मैनेजर, अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड सो ऑन. तो इसकी इफिशियंसी, इसका इफेक्टिवनेस ये बहुत ज़्यादा हो गया. इट विल बी मोर फ्रूटफुल, मोर इफेक्टिव एंड मोर इफिशियंट. As the supervisors know how now had an additional responsibility of planning apart from simply supervision, their work increased. So Taylor evolved a concept of functional foremanship based on specialization of person. Here 8 persons are involved to direct the activities of worker. क्योंकि अब क्या किया, सुपरवाइजर का टास्क यहाँ पर बढ़ गया. अब सुपरवाइजर को क्या करना है, सिर्फ उन पे ख्याल रखने का काम नहीं है, अब उनको क्या करना है, अब उनको हर एक को प्लान करके देना है उनका वर्क. तो सुपरवाइजर का वर्क बढ़ गया. तो इसके लिए उन्होंने किया फंक्शनल फोरमैनशिप एक कंसेप्ट है. फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या होगा कि जो वहाँ पर वर्क करते हैं फोरमैन से सुपरमैन, ये सब मिलके जो पर्टिकुलर पर्सन स्पेशलाइज्ड है. जैसे होता है कि अगर ड्रिलिंग का ऑपरेशन है तो देयर इज वन वर्कर हु इज वेरी गुड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन. वो बहुत परफेक्ट ड्रिल बनाता है टू वेरी क्लोज टॉलरेंसेस with very less defects, with more perfectness, with he achieves with a very good quality, a very good surface finish and so many things, very close to the tolerances. तो उसका स्पेशलाइजेशन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही वर्क्स ऑन अ डिफरेंट ऑपरेशन, जैसे वो शीट मेटल पे वर्क करता तो उसका फिनिशिंग का ऑपरेशन बहुत बढ़िया करता. तो ये लोग क्या करेंगे, उन सबको जो रहेंगे, अब सिर्फ आप आपका प्लान करके वर्क करते थे वर्कर्स, वो पार्ट नहीं रहेगा. अब ये लोग अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो भी उनको लगता है वो इनपुट देकर साथ में सुपरवाइजर बैठकर फिर ये कुछ प्लान बनाएंगे और वो वर्कर को देंगे. अब वर्कर के पास एक कार्ड पूरा रेडी रहेगा, लेकिन वो सिर्फ पहले आके अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने प्लान से काम करता था. बट अब ऐसा नहीं होगा. अब कैसा होगा, उसके पास एक मॉडिफाइड, एक इवॉल्व, एक मोर इफेक्टिव, एक मोर प्रोडक्टिव चार्ट अवेलेबल रहेगा एंड ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. अब देखो यहाँ पर जो उसको वर्क दिया जा रहा है वर्कर को, यहाँ पर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए. प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, देन रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. अभी जितने सारे आपको नाम दिख रहे हैं ये प्लानिंग वाले लोग थे, जिसमें रूट क्लर्क आगे, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनेरियन. रूट क्लर्क मतलब ये कि जैसे आपकी जो रूटीन कुछ एक्टिविटीज़ होती है. इंस्ट्रक्शन कार्ड मतलब कि हर वर्कर का एक कार्ड बना रहता है, उसके ऊपर जब वो थंब करता है उसके ऊपर उसका ऑपरेशंस लिखे हुए थे, वही चीज़ें. और टाइम एंड कॉस्ट मतलब ये आपने उसमें टाइम एंड कॉस्ट भी कंसिडर किया उसके इफेक्टिवनेस के लिए, रूटीन प्रोसेस भी देखा और उसको कार्ड पर सब कुछ दिया भी, और ये प्रॉपरली हो रहा, इसलिए और एक बंदा है वहाँ पर. मतलब जहाँ पर आप सिर्फ एक वर्कर बैठ के अपना काम प्लान करता था और एग्जीक्यूट करता था, अब वहाँ पे इतने सारे लोग इस तरफ से. प्रोडक्शन के साइड से स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर बॉस. अब ये जो अलग अलग नाम दिख रहे हैं ये बेसिकली से कहता है कि जैसे मतलब जैसे आपको जो स्पीड चाहिए, जो आपका पूरा एक गैंग मतलब कैसा होता है कि जो एक पूरा ग्रुप होता. बॉस मतलब ऐसा नहीं किसी गैंग का बॉस, नॉट लाइक दैट, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस एंड समथिंग प्रिसाइडिंग ओवर इट एंड समथिंग प्रिसाइडिंग ओवर द रिपेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस ऑफ दैट मशीन. एंड देन एन इंस्पेक्टर, अ क्वालिटी इंस्पेक्टर ऑल्सो, दे विल सिट टुगेदर एंड देन दे विल डिसाइड अ प्लानिंग फॉर दिस वर्कर्स. तो ये सब मिलकर अब वर्कर को बना के देंगे एक चार्ट एंड देन their worker will do his work. So this is the most effective thing. So this was the very first principle. So this was the very first principle, separation of planning and doing. कि प्लान कोई और करेगा, जॉब कोई और करेगा, और प्लान करने वाला उसको परफेक्टली प्लान करके देगा. इसकी वजह से नया कंसेप्ट इवॉल्व हो गया. सेकंड दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. मतलब ऐसा होगा कि अब जो फोरमैन से सुपरवाइजर सिर्फ खाली बैठे नहीं रहेंगे, वो हर एक के स्पेशलाइजेशन का वर्क का बेनिफिट हर वर्कर तक पहुंचाएंगे. I hope you are getting the points. Then next is job analysis. It is undertaken to find out the one best way of doing the things. The best way can be determined by taking the time motion fatigue studies. Time studies involve the determination of time a movement takes to complete. Motion study involves the study of movements which are involved in doing a job, thus eliminating the wasteful movements. Process study involves the study of movements which are involved in doing a job, thus eliminating the wasteful movements. Motion study involves the study of movements which are involved in doing a job, thus eliminating the wasteful movements.
फटीग स्टडी शोज द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद में जॉब एनालिसिस। अब बेसिकली कैसा है कि जॉब करने के एक से कई ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो आपको उसका बेस्ट वे फाइंड करना है कि विच इज़ द बेस्ट वे टू डू अ जॉब, एक पर्टिकुलर बेस्ट वे। और वो बेस्ट वे कैसे फाइंड करेगा, जो पर्टिकुलर वर्कर्स को एक्सपीरियंस है, जो सुपरवाइजर्स ने देखा हुआ, जो मैनेजर्स ने वर्क किया है और उन्होंने उसको इवॉल्व किया है, काफ़ी टाइम तक उस पर रिसर्च किया है, मतलब उनको एक्सपीरियंस से पता है काफ़ी टाइम से कि ये प्रोसेस को इस तरह से करोगे तो वो परफेक्ट होगा। तो फाइंडिंग द वन बेस्ट वे, और वो तरीका फिर सबको सिखाया जाएगा, उस तरीके से काम होगा। नाउ द बेस्ट वे कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइम, मोशन एंड फटीग स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि वेस्टफुल मूवमेंट्स हमको एलिमिनेट करनी है। जैसे सपोज मुझे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना, तो मैं यहाँ से पेन निकालता था, एक डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर सिग्नेचर करता था। अब उसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि उस डॉक्यूमेंट को वहाँ रख दिया, पेन को उधर जाके रख दिया। देन व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट टाइम, कि वहाँ से वो पेन मुझे लाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, फिर साइन करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में मैंने डॉक्यूमेंट को वहाँ रख दिया। अब इसी तरह की कई सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, जो वेस्ट मूवमेंट्स होते हैं, जिससे बिना मतलब कि आपको थकावट आती है, मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं है, वो फालतू की आपकी मूवमेंट्स हो रही है, तो उसको स्टडी करना। एंड आई टेल यू, ये एक सेपरेट, एक अलग तरह का एक स्टडी है, टाइम मोशन स्टडीज। ये बहुत एक अलग पार्ट है। इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है वो क्लब करके एक प्रोसेस प्लानिंग एक डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, ये सारे प्रोसेस को स्टडी करता है। तो ये टाइम, जैसे आपने पढ़े होंगे CPM एंड PERT, ये जो चार्ट्स रहते हैं, तो ये भी इस तरह की चार्ट्स रहती है। ये क्या डिसाइड करते हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो पूरा फ्रूटफुल यूटिलाइज हो। अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ ऐसे मशीन्स पढ़ी होगी जिसमें ऐसे रहता है कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक, सपोज आप किसी शेपर मशीन की बात करते हो या प्लेनर की बात करते हो, तो उसमें एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और एक बैकवर्ड स्ट्रोक। तो कटिंग जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में होता है, बैकवर्ड स्ट्रोक आइडल होता है। तो बैकवर्ड स्ट्रोक जो होता है वो एकदम फास्ट होता है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते, मैक्सिमम टाइम वो कटिंग स्ट्रोक के लिए देते हैं। वो दूसरा जो स्ट्रोक है वो आइडल है। तो ऐसी जो आपका आइडल टाइम होता, तो आइडल टाइम मतलब जैसे सपोज आपके टूल्स कहाँ पर प्लेस होने चाहिए। एक सबसे सिंपल एग्जांपल एर्गोनॉमिक्स भी इसमें कंसिडर होता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते तो बरोबर हमारे हाथ में क्लच है, ब्रेक है, पैर में हमारे गियर्स होते हैं, अंगूठे के थंब पर हॉर्न होता है, इधर लाइट होता है एंड सो मैनी थिंग्स। तो अगर सपोज ऐसा होता था कि आपको थोड़ा सा पैर दूर ले जाना पड़ रहा ब्रेक लगाने के लिए, सो दैट इज, वो एर्गोनॉमी भी है, मैन मशीन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी द रिलेशनशिप विद द मशीन, कि आपके टूल्स कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स कहाँ पर होना चाहिए, ताकि आपको इजीली एक हाथ बढ़ा के इसको निकाल लिया, ये काम किया, फिर दूसरा हाथ निकाला, इससे मेजर कर लिया, थर्ड पॉइंट लिया, इससे ड्रिल कर लिया एंड सो मैनी थिंग्स। तो ये जो स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम मोशन एंड फटीग स्टडीज। अब इसमें बोलते हैं टाइम स्टडीज इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ अ टाइम अ मूवमेंट्स टेक टू कंप्लीट, एंड मोशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब, thus eliminating the wasteful movements। आपको किस मूवमेंट के लिए कितना वक्त लगता है और कौन सी फालतू मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना, और ये बहुत फ्रूटफुल होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप 2 मिनट या 10 मिनट का भी अगर आप टाइम प्रोडक्शन में कम करते हो तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स द मूवमेंट्स ऑफ जॉब विच आर इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब, thus eliminating the wasteful movements। Fatigue studies shows that the amount and frequency of rest required in completing the work। फटीग स्टडी मतलब ये होता है कि देखो, अगर सपोज आपका जॉब ऐसा रहा कि आपको कुछ ऐसे मोनोटोनस एक्टिविटी है कि ये उठा के यहाँ से लेना है, तो उसमें बिना मतलब कि आपको थकावट आ रही, तो ये चीज़ें सब कुछ अवॉइड करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइंटिफिक, मतलब कि आपको जो टाइम है वो परफेक्टली यूटिलाइज करना है सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए। नहीं तो देखो एक बात बताओ कि जो काम को 1 घंटा लगता आप उस काम को 45 मिनट में कैसे करोगे। तो इसी स्टडी से आप करोगे। आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी वेस्टफुल मूवमेंट क्या है, आपका रेस्ट कितना हो रहा है, आपका टूल्स पिकअप करने में कितना मूवमेंट जा रहा है, आपको जॉब को पोजीशन करने में कितना वक्त लग रहा है, आपको बार बार मशीन को रोटेट करने में कितना वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी टूल्स, ऐसी टेक्निक्स निकालोगे, ऐसी टिप्स निकालोगे, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, कि उसकी वजह से आपकी वेस्टफुल मूवमेंट्स बचेंगी, आपका टाइम बचेगा, और वो जो फिर टाइम जो आपका बचेगा दैट इज योर अचीवमेंट। मतलब जो आपका काम है वो कम समय में होगा, दैट इज एन अचीवमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज बट ऑब्वियसली एक जनरली एक ये है कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद द टूल्स। मतलब एक जो बुरा वर्कर है हमेशा अपने टूल से लड़ते रहता है कि ये ऐसे टूल दे दिया, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, ये तो वो ही नहीं कर रहा। बट टू सम एक्सटेंट इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड कि अगर आपके पास टूल्स प्रॉपर हो गए तो देखो ये क्या बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन, द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस। स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ instruments, tools, period of work, amount of work, working conditions, cost of productions and all the things। अब देखो यहाँ पर बता दें इंस्ट्रूमेंट्स।
स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप वर्नियर गेज यूज़ करते हो, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, लेकिन उसकी रीडिंग्स ही आपको दिखती नहीं है, वो धुंधले हो गए। आपको ऐसा ओडी मेजर करने के लिए कैलिपर यूज़ करते हैं, कुछ डायल इंडिकेटर है, कुछ और है, माइक्रोमीटर है, लेकिन उसकी रीडिंग्स प्रॉपर नहीं है, वो टाइम पे वर्क नहीं करता। जैसे अपने घर पे जो रिमोट है टीवी का, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा ठक ठक और फिर उसके बाद में टीवी शुरू करते हैं। तो हर बार ऐसा करते ठक ठक, वो खराब हो गया, उसमें सेल चेंज करना पड़ेगा। तो इट शुड बी स्टैंडर्ड थिंग कि अगर ऐसे इक्विपमेंट से आप वर्क करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होना ही होना है। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का। उसके बाद में पीरियड ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। पीरियड ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ वर्क। पीरियड ऑफ वर्क का देखो, अगर आप कंटिन्यूस वर्क करते हो तो देखो, आप कंटिन्यूस अगर वर्क करेंगे तो आपको फटीग आएगा, आप थक जाओगे और आप बोर्ड हो जाओगे, टायर्ड हो जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स। तो आपने कितना वक्त के बाद में ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ पर आपने रुकना चाहिए, फिर से आपने वर्क कैसे शुरू करना चाहिए, दैट इज पीरियड ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क, कि कितना वर्क पॉसिबल है, हाउ मच ह्यूमन बीइंग कैन वर्क इन अ पर्टिकुलर डे, वो कितने देर तक वर्क कर सकता है, कितना वर्क पॉसिबल है। वर्किंग कंडीशंस, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हो। अगर आप सपोज किसी ऐसी जगह पे वर्क करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टील प्लांट्स जहाँ पे लोहा पिघलाकर स्टील्स बना जाता है, तो ऐसी जगह पे आप वर्क करते हो तो आपके लिए वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो आपके पास प्रॉपर उसके पूरे प्रोटेक्शंस होना चाहिए, पूरे ड्रेसेस प्रॉपर होने चाहिए, आपका एप्रॉन होना चाहिए, और उसके बाद में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जॉब से निकल कर आप कहीं पर रिलीफ फील हो। क्योंकि इतनी गर्मी में आप कंटिन्यू अगर वर्क करोगे तो यू विल गेट फायर्ड फ्रॉम इनसाइड। आपको ऐसा आएगा कि पूरी तरह से आप थक जाओगे, योर बॉडी विल गिव अवे इन सम टाइम। तो इतनी देर ऐसा होना चाहिए कि उस मशीन पे बस इतना ही वर्क करो, बाद में बाहर जाओ। आई यूज टू वर्क इन कंपनी नेम लुब्रिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। इट यूज टू मैन्युफैक्चर पंप ऑफ मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज का जो फ्यूल पंप है वो वहाँ पर असेंबल होता था। तो उनका एक टेस्ट था जहाँ पर हम क्रैक्स टेस्ट करते हैं शाफ्ट में। तो वो मशीन ऐसा एक डार्क, जैसे आपने फिजिक्स का डार्क रूम होता है ना, वैसी डार्क इसमें वो मशीन पे हम लोग वो टूल को रखते हैं। इट इज़ लाइक जस्ट होल्डिंग द टूल बिटवीन सपोज हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, रोटेटिंग इट, और उस पर कुछ एक स्प्रे करते उससे मशीन में क्रैक्स दिखती इन द अल्ट्रा इन अ वायलेट और सम वो डार्क वायलेट और रेड कलर से। उससे पता चलता है कि आपका जो शाफ्ट मैन्युफैक्चर है उसमें माइन्यूट या मेजर या कोई इंटरनल क्रैक्स तो नहीं है। लेकिन वो मशीन पे जब वर्क करते तो उसमें रॉकेल्स यूज होते हैं और कुछ यूज होता है, तो वहाँ पर 1 घंटे के ऊपर आपको वर्क करना अलाउ ही नहीं था। स्टैंडर्ड ये था कि मैक्स 4 आवर्स यू कैन वर्क ऑन इट, बट द कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट मोर देन 1 आवर यू शुड वर्क ऑन इट। क्योंकि आप अगर उसमें कितना कंटिन्यू काम करोगे तो आपकी आंखें खराब होने के वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्यूम्स, दैट रेडिएशंस जो वहाँ पर कंटिन्यूसली, दैट कुड कैन डैमेज योर नोज, थ्रोट, एवरीथिंग। तो इसके वजह से ऐसा होता कि वर्किंग कंडीशंस मस्ट बी अप्रोप्रिएट, मस्ट बी प्रॉपर, वो सही होना ही चाहिए। देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट वर्क। इमेजिन करो कि आप आपके बहुत अच्छे दोस्त से मिल रहे हो बहुत समय के बाद, और आप मिल रहे हो एकदम कड़क धूप में, एकदम कड़क धूप पर। जैसे आप उससे मिलोगे तो इतनी कड़क धूप में ऐसा हो जाएगा कि आपका पसीना बह रहा है, पूरी धूप है, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। तो आपका जो टेम्पो रहेगा, आपका जो एक अफेक्शन रहेगा, वो जो खुशी रहेंगी जबरदस्त, वो 5 मिनट में गायब हो जाएंगी। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस वी वॉन्ट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, कि एक प्रॉपर जैसे एक, और वही सपोज आपके फ्रेंड को मिल रहे हो, एक मस्त एक अच्छे समुद्र किनारे बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है, वेरी पॉजिटिव एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सो इन दोनों का डिफरेंस आपके ख्याल में है कि एक जगह पर आपको बहुत फ्रेश लग रहा है और एक जगह पे आप एकदम सडनली इरिटेट हो गए हो कि अरे अरे क्या गर्मी है, क्या धूप है। सो दैट इज द थिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम सबको भी पता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस डेप्थ में समझना जरूरी है कि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप किस तरह से बैठते हो, आपकी पोजीशंस, अगर आपका टेबल पे सपोज आपको झुक के काम करना पड़ रहा है, ऐसा अगर इतना झुकना पड़ता है तो आपकी गर्दन में पेन आएगा। थोड़े टाइम के बाद में आपका वर्किंग जो है एफिशिएंसी वो कम होगा, वर्क पीरियड भी कम होगा, वर्किंग का टाइमिंग भी कम होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। मतलब आप 1 घंटे भी बैठोगे तो आप आधे घंटे के काम बरोबर नहीं कर सकोगे। इसलिए एवरीथिंग हैज़ टू बी अ स्टैंडर्डाइज मार्क। हम जिस चेयर पे बैठते हैं ना, वो चेयर भी बहुत कुछ सोच समझ कर डिज़ाइन किए गए कि स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए, कहाँ पर आदमी ने बैठना चाहिए, उसके पैर ज़मीन तक कैसे होना चाहिए, एंड एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कि चल ठीक है हम स्टैंडर्डाइज तो कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वर्किंग कंडीशंस वी कैन गिव, बट अगेन वी हैव टू एडजस्ट विथ कॉस्ट। कि ठीक है हम इतना सब तो कर लेंगे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट सपोज X रुपए में बिक रहा, उस पर हमको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर।
कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इट इज़ ओके, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ा देंगे या फिर पीरियड ऑफ वर्क बढ़ा देंगे या वर्किंग कंडीशन ठीक है अप टू द मार्क रखेंगे. सो देयर हैज़ टू बी अ कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. मतलब ये ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग अगेंस्ट योर एम्प्लॉय कि आपने वर्किंग कंडीशन में चेंज किया. नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस एंड दैट इज़ अलाउड कि आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही फिर कुछ तो भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स या स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट या स्टैंडर्डाइज कंडीशंस या फिर एक स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें. और इसलिए जनरली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देयर इज यूनियन ऑफ द वर्कर्स, और वो जो वर्कर्स के यूनियन का लीडर रहता है ही इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस. जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं उससे भी पूछा जाता है, उसकी भी राय वहाँ पर ली जाती. सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेकिंग ऑल द प्रोसेस, मेकिंग ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द टूल्स, द अमाउंट ऑफ वर्क एंड ऑल दिस कंडीशंस इन अ स्टैंडर्डाइज वे. Now then scientific selection of and training of workers, it is very important कि जिस वर्कर को आप सिलेक्ट करते हो तो उसको प्रॉपर उसका एजुकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ सब देखा जाए. जैसे आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब करना रेलवे में तो आपके आइज़ को ग्रीन और रेड और इसका डिफरेंस पता होना चाहिए. कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन द डिफरेंट कलर्स कि रेड फ्लैग कब आ रहा और ग्रीन फ्लैग कब आ रहा. वैसे कई ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए रहती है क्योंकि कुछ तो भी जॉब लिफ्ट करना है, उसको पुट करना है, उसको रिमूव करना है, तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद इट योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग. एंड यहाँ पर डिस्कशन जनरली शॉप फ्लोर का है तो वर्कर्स के बारे में हो रहा है, बट इट अप्लाइज टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. हर इक्विपमेंट की, हर पोजीशंस के लिए ये होना ही चाहिए सारी चीज़ें. इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड. जब आप इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हो तो यू हैव टू गिव अ फिजिकल टेस्ट. दे चेक यू फिजिकली कि यू आर फिट और नॉट एंड यू हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर. एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि येस आई एम फिजिकली फिट टू वर्क. और उसके बाद में फिर अपने को लगता है तो छोटी सी चीज़ है कि हम सर्टिफिकेट ले लेंगे, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. योर स्ट्रेंथ कि आप कितनी देर खड़े रह सकते हो, कितनी देर बैठ सकते हो, आप कैसे वर्क कर सकते हो, आपकी आइज़ की क्या स्टेटस है, एंड ऑल दिस थिंग्स. A worker should be given work for which is physically and technically most suitable. Proper emphasis should also be given on the training of workers. अब बेसिकली क्या होता है, ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग. आप अगर उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ का प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा रहता है. लेकिन मैनेजर्स को क्या लगता है, मैनेजर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि अरे मैंने वर्कर्स हायर किया, अब एक महीने अगर मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा तो ये तो एक महीने में फ्री में इनको मुझे सैलरी पे करना पड़ेगा, क्योंकि फोकट में अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको लूंगा या नहीं लूंगा गारंटेड नहीं है, बट यू हैव टू अटेंड माई ट्रेनिंग. तो कौन आएगा ट्रेनिंग के लिए? तो जो वर्कर्स आपने हायर किए, जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए, आप उनको ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो आप ट्रेनिंग अगर उनको देना चाहते हो तो ट्रेनिंग पे खर्चा होगा वो अलग, और जब तक इनका ट्रेनिंग चलता रहेगा यू हैव टू पे देम. सो ही इज गोइंग टू बोन दिस चार्जेस. तो ये क्यों उठाना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन? so, इसलिए क्या होता, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के पार्ट को वैसे अवॉइड करते कि नहीं वैसे ही चलने दो, कुछ नहीं है ना, पुराना एक्सपीरियंस चलने दो. लेकिन ये लॉन्ग रन में हमेशा घाटे का सौदा होता है. ये लॉन्ग रन में हमेशा इससे नुकसान ही नुकसान, इससे लॉस ही होता है लॉन्ग रन में. क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो तो आपका वर्कर आपके लिए प्रॉपरली वर्क करेगा और जो काम आप 1 घंटे में कर सकता है वो 45 मिनट में करके देगा. अगर हर एक वर्कर की इफिशियंसी बढ़ गई तो पूरे शॉप फ्लोर की इफिशियंसी बढ़ेगी, और पूरे शॉप फ्लोर की अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये जो चीज़ बढ़ेगी ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ऑन द बिजनेस, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द प्रॉफिट एंड एवरीथिंग. सो हेंस ट्रेनिंग इज मस्ट. तो ये जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, इसमें ये जो फिलोसॉफिकल पार्ट था, जैसे हमने देखे थे अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा इन्होंने कुछ साइंटिफिक चीज़ें डाली कि नहीं यार, अगर आप किसी चीज़ को ट्रेनिंग दो, जैसे आपको अगर कार चलाना सीखना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ वक्त, और उसके बाद में तब तक आपके साथ एक मेंटर बैठा रहेगा, एक गाइड बैठा रहेगा, और फिर कुछ वक्त के बाद में आप उसको कंफर्टेबली चला पाओगे. अगर वही सपोज आपको ट्रेन नहीं किया गया, आप धीरे धीरे कैसे भी अपने हिसाब से सीख रहे, तो आप वो कार का भंटा डारी कर दोगे. अब एग्जैक्टली कार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, है ना, एंड वेरी डेंजरस सिचुएशन. लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा ना, एकदम से ख्याल में नहीं आता कि काम थोड़ा सफर हो गया तो क्या होगा. इसकी वजह से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन. दैट शुड नॉट बी डन. द ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. और इसकी वजह से क्या होता है, यूनियन जो रहता है वो इन सबको बैकअप करता है कि नहीं, आपने एक नया कुछ तो भी एक प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन वो मशीन हैंडल करना हमारे वर्कर्स को आता ही नहीं है, और ऐसे कुछ नॉर्म्स है कि उसमें सेफ्टी नॉर्म्स कितने हैं, कितने देर उस पर वर्क करना है, फिर उनको आप प्रॉपरली ट्रेन करो, ये सारी चीज़ें. सो दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. So I think it is near about 30 minutes. So what we'll do, we have discussed only 5 parts till now of scientific management. Next we'll discuss in our next lecture. Till then, chalo, thank you class. Jai Hind.